Hello, kids. A very good morning to all of you. Kids, can you see in this picture? There are lots of kids and they are, running, enjoying, and doing so much fun activities over here, right, kids? Do you know from where they are getting this energy? इनको ये energy कहाँ से मिल रही है? Yes, kids, we get this energy from the food we eat. जो हम खाते हैं वहाँ से हमें ये energy मिलती है. To get energy from food, we first need to break down the food. सबसे पहले आपको अपने फूड को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. वी हैव बॉडी सेल्स. Our body cell use the oxygen from the air that we breathe in for this breakdown. इस breakdown के लिए हमारा जो body में जो cells हैं वो क्या करती हैं? ऑक्सीजन का intake करती हैं to break down this food. So breakdown of food takes place with the help of oxygen and energy is released in our body, right kids, so that we can do lots of activity together. So this process is known as respiration. इसी process को हम respiration कहते हैं. तो respiration is a means of releasing energy from the food. Understand kids? So kids, we take air in and out all the time, right? So the physical process of taking air in and out from our body is known as breathing. इसे हम क्या कहते हैं? Breathing कहते हैं. As you know that all living beings need oxygen to live, right? We get this oxygen from air we breathe in. Understand? ये oxygen हमें कहाँ से मिलती है? जो air आप intake करते हैं वहाँ से हमें ये oxygen मिलती है, right kids? So actually breathing involves two processes. So our first process is inhaling and our second process is exhaling. Understand kids? So breathing in of air is called inhalation and breathing out of air is called exhalation. So kids, today we will learn about our respiratory system and we will learn how do lungs work. So here we go. किड्स, जैसे कि आपके बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड हैं आपकी क्लास में, राइट? उसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी कुछ बेस्ट फ्रेंड हैं जो कि इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं. दे आर नोज, विंड पाइप, ब्रोंकस, लंग एंड डायाफ्राम. So kids, can you tell me what is this? Yes, it's a picture of nose, right kids? So आप देखेंगे आपका जो nose है, it is connected to the lungs. ये lungs के साथ connected है. कैसे connected है? Through this windpipe. इस part को हम कहते हैं windpipe. Understand? So kids, the opening of the nose is known as nostril. ये जो आपकी nose में आप देखते हैं होल हैं, right? उन्हें हम क्या कहते हैं? Nostrils. The air enters the nose through the nostril. Inside the nose, आपकी nose के inside we have hair and mucus are present. They prevent dust, dirt from entering the nose along with the air we inhale, right? जो भी आप inhale कर रहे हैं, जो भी हवा आप ले रहे हैं, air आप intake कर रहे हैं, उसमें जो भी dust है और डर्ट है उसको नोज में एंटर करने से रोकते हैं. क्या? जो आपके नोज के अंदर हेयर हैं और जो म्यूकस है. अंडरस्टैंड किड्स? नाउ यहां से होते हुए आपका जो एयर है वो इनसाइड जाता है थ्रू दिस विंड पाइप. एज आई टोल्ड यू, दिस इज कॉल्ड एज विंड पाइप. और इसका सेकेंड नेम है ट्रैकिया. इसका दूसरा क्या नाम है? ट्रैकिया. आप इसको ट्रैकिया के नाम से भी बुला सकते हैं. नाउ जब ट्रैकिया से गुजरते हुए आपकी विंड पाइप्स जो है यहां से आपका, क्योंकि नोज और माउथ से कनेक्टेड है, तो यहां आगे जाके इट स्प्लिट इनटू टू ब्रांचेस. ये जो ट्रैकिया है, जो विंड पाइप है, ये टू ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं. दीज टू ब्रांचेस, ये जो जहां से डिवाइड हो रही हैं, अंडरस्टैंड, इट्स स्प्लिट इनटू टू मेन ब्रांचेस आर कॉल्ड ब्रोंकाई. इसे हम कहते हैं ब्रोंकाई. अंडरस्टैंड किड्स? नाउ अब दिस पार्ट इज कॉल्ड ब्रोंकस एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रोंकस. सो सिर्फ डिफरेंस क्या है? दिस इज योर right bronchus whereas this is your left bronchus. Understand kids? ये आपका left bronchus है. This is your left bronchus. This is your bronchi. Understand? जहां से दो parts में divide हो रहा है, this is your right bronchus. Understand kids? अब
ये दोनों लंग्स हैं. जब एयर एंटर करती है नोज के थ्रू विंड पाइप से होते हुए, जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं, जो ब्रोंकाई है यहाँ आपका जो विंड पाइप है 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, विच इज कॉल्ड राइट ब्रोंकस एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट ब्रोंकस. अंडरस्टैंड. उसके बाद जो एयर है वो आपके जो लंग्स हैं उनके इनसाइड चले जाती है. सो किड्स, दिस इज हियर आपके ठीक लंग्स के नीचे वी हैव अ डोम शेप्ड मस्कुलर वॉल. ये एक मस्कुलर वॉल होती है डोम शेप की जस्ट बिलो द लंग्स. इट इज द मसल दैट वर्क्स विथ लंग्स टू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. जब आप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं और व्हेन यू नो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस करते हैं अपनी बॉडी में, उस टाइम ये जो डोम शेप्ड आपको मस्कुलर वॉल दिख रहा है बिलो द लंग्स, ये इनका क्या काम है? इनका काम है कि जब जैसे ही ऑक्सीजन और एयर यहाँ तक आपके लंग्स ने एब्जॉर्ब करी, यू नो योर लंग्स आर स्पॉन्जी और एक बलून लाइक दे हैव अ बलून लाइक स्ट्रक्चर. दैट्स व्हाई मैम यूज्ड बलून ओवर हियर. अंडरस्टैंड. व्हेन एयर इज इनहेल्ड, जब आप एयर को इनहेल करते हैं थ्रू योर नोज, व्हेन यू इनहेल एयर द ऑक्सीजन रीचेज द लंग्स. तो ऑक्सीजन विंड पाइप के थ्रू और राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस के थ्रू कहाँ पहुंच जाती हैं? आपके लंग्स में पहुंच जाती हैं. राइट. तो जब वो लंग्स में पहुंचती है, इन द लंग्स the oxygen that reaches the lungs is absorbed by the blood. यहाँ जो blood है आप ये देखेंगे मैम ने यहाँ छोटे छोटे एक बना रखे हैं, फ्लावर्स टाइप के बना रखे हैं. दे आर नॉट एक्चुअली फ्लावर्स, यू नो, इनको हम कहते हैं सैक्स. ये बैग की तरह होते हैं, जस्ट लाइक अ बैग. तो इन बैग में क्या होता है? वी एक्सचेंज व्हाट? एयर. यहां पर एक्सचेंज होती है. फ्रॉम एयर यू टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज अदर गैसेस विद द हेल्प ऑफ दीज सैक्स. अंडरस्टैंड. सो अब ये डायफ्राम का क्या वर्क है? जब आपने ब्रीद इन करा, व्हेन यू इनहेल, ऑन दैट टाइम ये जो डायफ्राम है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल हो जाता है, सो दैट आपके चेस्ट एक्सपैंड कर सकें. क्या कर सकें? एक्सपैंड कर सकें. और जैसे ही आप एयर रिलीज करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, ऑन दैट टाइम इट कम्स इन इट्स प्लेस अगेन. ये फिर से अपनी शेप प्लेस पे वापस आ जाता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ अनदर एक्टिविटी ओवर हियर. So kids, I am using this prop to tell you about diaphragm, work of diaphragm. So as I told you that it's a dome shaped muscular wall below the lungs. lungs के ठीक नीचे एक muscular wall की तरह काम करता है. and ये क्या काम करता है? जब आप इसे जब आप breathe in करते हैं तो उस टाइम क्या होता है? तो इस तरीके से उस टाइम आपके lungs पे एयर फिल हो जाती है. कैन यू सी? बलून देखा आपने? बलून में एयर फिल हो चुकी है. इट इज यू नो सेम, दिस इज द सेम हैपन इन योर लंग्स. जब आप ब्रीथ इन करते हैं तो इस तरह से आपके लंग क्या होते हैं? एक्सपैंड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एयर. यू नो एयर उनमें फिल हो जाती है. दैट्स व्हाई. एंड व्हेन यू रिलीज योर एयर, जब आप अपनी हवा ब्रीथ आउट करते हैं, व्हेन यू एक्सहेल, राइट, जब एक्सहेलेशन प्रोसेस आप करते हैं तो उस टाइम क्या होता है? आपके लंग्स में से क्या होती है? एयर बाहर आ जाती है, यानी यू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ऑन दैट टाइम. उस टाइम क्या होता है? आपके जो लंग्स रिलैक्स अपनी पोजीशन में आ जाते हैं. एंड जो आपका डायफ्राम है इट ऑल्सो कम्स इन इट्स प्लेस. अंडरस्टैंड. फिर से व्हेन यू ब्रीथ अगेन it again expand. Can you see the balloons? They are expanding. Yes. देखिए कैसे हवा उसमें फिल हो रही, एयर कैसे फिल हो रही है आपके लंग्स में. एंड व्हेन यू ब्रीथ आउट, आपके लंग्स डायफ्राम अपनी प्लेस पे वापस आ गया और आपके लंग्स में से एयर रिलीज होगी. अगेन दिस प्रोसेस हैपन्स एवरी टाइम. इस तरह से आपकी बॉडी में प्रोसेस होते रहता है. और ये जो डायफ्राम है ये आपकी हेल्प करता है, लंग्स को स्पेस प्रोवाइड करता है सो दैट आपके लंग्स एक्सपैंड हो सकें. Understand? So that they can absorb enough, you know, air. Understand kids? और जब आप रिलीज करेंगे what will happen? They will contract. ये जो आप देख रहे हैं बलून्स में से एयर रिलीज हो रही है. This will show you, it will help you to understand how your muscles, lungs muscle get contract.
अंडरस्टैंड? सो इस तरीके से एयर फिल होती है. दिस इज कॉल्ड इनहेलिंग. जब आप इनहेलिंग करते हैं प्रोसेस, उस टाइम योर लंग्स एक्सपैंड. अंडरस्टैंड? जब आप एक्सहेलिंग करते हैं एयर की, तब क्या होता है? आपके लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और डायफ्राम अपनी प्लेस पे वापस आ जाता है. दिस इज व्हाट हैपन इन योर lungs every time. Understand, kids? So kids, I hope you all understood. So thank you very much for watching. Have a nice